A very good evening to all the inter students out there. I hope you are doing fantastically well and you are prepared for your May 26 exams and you are going to hit it a lot. So I have seen the model test paper which has been uploaded by the ICI a few days ago. So I will be taking out the questions from the model test paper. Okay, and this is the model test paper number 3 which I will be covering today. And a few of the questions we will be covering. I will tell you which of the questions are we supposed to cover up today. So that is the 2 part B and 2 part D. And then moving on to the question number 3, we will be covering up the part number B. So first of all, I will be picking up the 2 part B because it is related to the vouching and the verification, which the students find it a bit difficult to cover up the points and they find it very confusing that how to write the answers when it comes to FSLIs and the vouching and verification. And again, you can see here that this carries a weightage of the 4 marks and so let's begin. So this is related to the bank OD facility in which Alpha Limited has sent the bank confirmation. I hope you are very well aware of the bank confirmation that we send to confirm our balances, be it related to cash, be it related to debtor or the creditor, right? Or any of the borrowings which your entity has taken. So as per the bank confirmation, the amount is this, and as per the ledger, the amount is this. So how will you vouch in verifying the borrowings from the bank? So first of all, you need to understand that whenever you have taken the borrowings, या जब भी आपने कोई भी borrowings लिए हैं, then you need to roll out the confirmation to confirm the balances that is appearing in your books of account. So first step is to roll out the confirmations. Okay. रोलिंग आउट मीन्स सेंडिंग आउट ऑल द कंफर्मेशंस कि आपको वो बैलेंस सर्टिफिकेट चाहिए, बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट चाहिए, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए. ओके, सो दैट यू कैन कंपेयर बोथ द बैलेंसेस. सो लाइक इन द cash, what we compare our balances, and in case we find any of the difference in our ledger and the bank certificate, so then we perform the reconciliation to find out the differences. So in the similar way we will be performing the same procedure here. So I am sharing the number of the points which you can write here in vouching and verification. So first of all, what you need to write in the description when you are starting your answer, that you need to roll out and send out all the confirmation. And जब आप confirmation भेज रहे हो ना, तो there are few things that you need to ask. So first of all, you need to ask about the interest rate. So what is the interest rate? What is the due date? What is the due date means कि आपकी repayment की due date क्या है? कोई आपने borrowing के against collateral दिया हुआ है या कोई security दी हुई है, तो details of that collateral also. ओके, तो अब ऐसा तो नहीं होता कि आपने कंफर्मेशन भेजी और सारी कंफर्मेशन एक ही दिन आ गई. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ कंफर्मेशन यू डोंट इवन रिसीव. सो व्हाट यू विल डू, यू विल सेंड आउट द रिमाइंडर्स टू दैट पर्सन कि यार हमारे पास कंफर्मेशन नहीं आई हैं. अब समझ आ गया कि कंफर्मेशन भेज दिया, कंफर्मेशन का रिमाइंडर भेज दिया, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू परफॉर्म द रिकंसिलिएशन इन केस देयर इज एनी डिफरेंस. अब जैसे इसमें भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, so if that difference is material, that difference is above your materiality, then you need to perform the reconciliation कि यार मेरे पास ये differences क्यों आ रहे हैं. और वो reconciliation के लिए आपको क्या भेजेंगे, एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे जिसके बेसिस पे आप उस डिफरेंसेस को शॉर्ट करोगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू क्लियर विद दीज 3 पॉइंट्स? तो कंफर्मेशन में हमारे पास 3-4 पॉइंट्स है. पहले आप कंफर्मेशन भेजो, सबको कंफर्मेशन भेजो. कंफर्मेशन आ गई तो ओके, कंपेयर करो बैलेंसेस. इफ द डिफरेंस इज देयर, देन यू नीड टू परफॉर्म द रेक. इफ द कंफर्मेशन हैज नॉट बीन रिसीव्ड, देन यू नीड टू डू व्हाट, यू नीड टू सेंड द रिमाइंडर्स. तो दिस इज द फ्लो चार्ट रिलेटेड टू द कंफर्मेशन. अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यार आपने बोला कि यार मुझे बोरिंग्स चाहिए और बोरिंग्स आ गई, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग दिस इज नॉट समथिंग लाइक कि बहुत छोटी चीज है कि आपने बोला और वो चीज आ गई, ऐसा नहीं हो सकता. सो यू नीड टू टेक सम अप्रूवल फ्रॉम द ऑथराइज्ड पार्टी. सो मे बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया कंपनी के केस में, तो आपको उनका एक अप्रूवल चाहिए होता है कि वी नीड द बोरिंग्स, दिस मच अमाउंट ऑफ द बोरिंग, और इसकी लिमिट अगर सपोज 10 करोड़ की है, सो इफ यू वांट द बोरिंग्स फॉर 20 करोड़, सो देन यू नीड टू सीक इफ अप्रूवल हैज बीन देयर, if you have the necessary approval for taking out the borrowings for the 10 crore or maybe the 20 crore, तो आपको वो प्री डिसाइडेड जो आपका अमाउंट है वो आपको ब्रीच नहीं कर रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बोरिंग, कि आपको बोरिंग क्यों चाहिए,
ठीक है, कुछ ना कुछ पर्पस होगा जो कि लिखा होगा एमओए में या एओए में, तो यू नीड टू सी दैट पर्पस की व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट बोरिंग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो these are some certain points that you need to write in your exam. And of course if the question is for the 4 marks then you need to write at least 6 points. ठीक है, and make sure कि आप बहुत relevant point लिखो. आप बार बार confirmations भी नहीं लिख सकते हो, आप बार बार authorization भी नहीं लिख सकते हो. तो split 2 points कि अच्छा मुझे 4 point इसके लिखने हैं तो मुझे 2 point इसके लिखने हैं. Are you getting the point? Are you getting my approach कि आपको ये question को कैसे लिखना है? So if you really want to see the answer I can show you, and these are the points that they have covered here. I will help you to mark out the keywords and maybe you can prepare the flow chart. Ki first of all you need to roll out the independent balance confirmation. So this is the first point. What you need to do, you need to roll out the independent balance confirmation. जहां से भी लिया, कोई भी आपका lender हो सकता है. Maybe it can be bank, maybe it can be the financial institution. अब उसके बाद देखना है कि confirmation में आप क्या क्या information देखोगे. आप interest rate देखोगे, आप due dates देखोगे, आप collateral देखोगे. So these are the key points that you need to write. You cannot write कि मेरे को confirmation दे दो. confirmation में क्या दे दो? confirmation में applicable interest rate दो, confirmation में due dates दो, collateral दो. ओके, उसके बाद अगर कंफर्मेशन नहीं आती तो आपको रिमाइंडर भेजने हैं. अगर कंफर्मेशन हमारे पास आ गई तो आपको क्या करना है, कंपेयर द बैलेंस. रेस्ट इज नथिंग, रेस्ट इज जस्ट द थिंग की बिटवीन विच यू नीड टू कंपेयर. सो कंफर्मेशन एंड बुक्स ऑफ अकाउंट, उसका कीवर्ड है कि यू नीड टू कंपेयर द बैलेंसेस. ओके, अगर हमारे पास डिफरेंसेस आ रहे हैं तो इफ देयर आर एनी डिफरेंसेस देन आस्क फॉर द रिकंसिलिएशन, रिकंसाइल द बैलेंस. समझ में आया? उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी ऑथराइज पार्टी से जिससे आपको ऑथराइजेशन दिया है उसका वो देखो कि आप ऑथराइज हो उस लोन लेने के लिए, और आपने जो भी अमाउंट ऑफ लोन मैक्सिमम लिमिट है आपने वो ब्रीच या कॉन्ट्रावीन नहीं करा. एंड देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लोन एंड दिस नॉट हैज बीन प्रीजुडिशियली अफेक्टेड द एंटिटी. सो दिस इज हाउ यू नीड टू राइट आउट द पॉइंट्स एंड दिस इज हाउ यू विल वाउच एंड वेरीफाई द बोरिंग्स. बहुत ईजी है, बहुत ईजी. अगर आप समझ के चलोगे तो बहुत ईजी. अगर आप समझ के नहीं चलना, बस ऐसे रट्टा मारना है तो फिर कोई भी पॉइंट याद नहीं होगा. समझ में आ रहा है? एक बार और रिवाइज करा देती हूँ. Rolling out the confirmation. What you need to roll out? You need to roll out the confirmation. Case number 1 सारी confirmation आ गई. Case number 2 confirmation नहीं आई. confirmation नहीं आई तो आपने क्या करना है, रिमाइंडर भेजना है. confirmation आ गई, क्या करना है, कंपेयर करना है. किसको कंपेयर करना है? बैलेंसेस को. बैलेंसेस में डिफरेंस नहीं है, वेरी गुड. बैलेंसेस में डिफरेंस है, यू नीड टू परफॉर्म द रेक. रेक के लिए आपको क्या चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपको क्लाइंट दे देगा. समझ में आया? इससे आपके 4 पॉइंट्स बन गए. उसके बाद आपने ऑथराइजेशन देखना है कि वेरीफाई द अथॉरिटी अंडर विच द लोन हैज बीन रेज्ड. अगर कंपनी का केस है तो बीओडी का वेरिफिकेशन होगा या ऑथराइजेशन होगा. जो भी मैक्सिमम लिमिट है, सेक्शन 180 लिखोगे तो भी ठीक है, सेक्शन 180 नहीं लिखोगे तो भी ठीक है. ठीक है, वो आपने क्या नहीं करना, कॉन्ट्रावीन नहीं करना. नेक्स्ट पॉइंट इज जो भी आपका पर्पस है दैट शुड बी met and that should not be prejudicially affected. Are you getting the point now? अब उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आता है कि ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान में क्या डिफरेंस है. दैट इज द क्वेश्चन नंबर डी कि रिलेशनशिप बताना है ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान में. डिस्कस द पॉइंट्स दैट द मैनेजमेंट पार्टनर विल एक्सप्लेन टू द टीम इन दिस रिगार्ड. मेरे को लगता है आज की स्टेज में वेयर यू आर जस्ट लेफ्ट विथ 15 डेज ऑफ एग्जाम, और अगर किसी भी मॉडल टेस्ट पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, सो दैट इज द बोनस. दैट इज रियली अ बोनस बिकॉज इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में पूछना इटसेल्फ इज लाइक कि यार मतलब भगवान आपके ऊपर आज फिदा है. समझ में आया? तो ऑडिट स्ट्रैटेजी एक बहुत बड़ा है, जबकि ऑडिट प्लान जो है वो स्प्लिट करता है ऑडिट स्ट्रैटेजी को. समझ में आया? ऑडिट स्ट्रैटेजी आपका पूरा आपका जो है ना टाइमिंग बताता है, नेचर बताता है. ठीक है, कब आपका ऑडिट कंप्लीट होना चाहिए, ऑडिट का स्कोप क्या है. लेकिन ऑडिट प्लान क्या बताता है कि जो भी आपने ऑडिट स्ट्रैटेजी में लिखा है ना उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसको एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे करना है. आपने लिख दिया कि मेरे स्कोप में बैलेंस शीट के आइटम्स है लेकिन पी&एल के आइटम्स नहीं है, लेकिन ऑडिट प्लान बताएगा कि पीपीएनडी का ऑडिट हमने कैसे करना है, किससे कराना है. डेटर का ऑडिट हमने कैसे करना है, किससे कराना है. डिफरेंट प्रोसीजर्स बताएगा. सो दैट विल बी कवर्ड अंडर द ऑडिट प्लान. और दोनों चीजें क्या है, इंटररिलेटेड है. अगर सपोज करो आज के डेट में आपने बोला मेरा 9 मंथ्स का ऑडिट है, दैट यू हैव रिटन इन योर ऑडिट स्ट्रैटेजी. ठीक है, तो आपने ऑडिट प्रोसीजर्स 9 मंथ्स के हिसाब से भरे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन you need to extend, you need to change your timings and then you have increased it to 12 months audit. So then accordingly your plan will also change.
सो बोथ ऑफ देम आर लाइक इंटर रिलेटेड। तो मैं आपको इसका आंसर पढ़वा देती हूँ एक बारी कि आपने क्या क्या इसके अंदर लिखना है। तो रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड द ऑडिट प्लान। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी सेट्स द ब्रॉड ओवरऑल अप्रोच टू द ऑडिट, so this is the key point, whereas audit plan addresses various matters identified in the audit strategy. तो until and unless आपका audit strategy defined होगा, you cannot write the plan matters in the audit plan, राइट। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी आपका स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन बताता है कि स्कोप क्या है, टाइमिंग्स क्या है, लेकिन ऑडिट प्लान आपका क्या बताता है कि जी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं, जितने भी एक्सटेंट है कि सब्सटैंटिव करना है या खाली टेस्ट ऑफ कंट्रोल ही करना है। एक सेकेंड ना, सॉरी। तो अगर ऑडिट स्ट्रैटेजी आपको क्या बताता है, स्कोप, टाइमिंग एंड द डायरेक्शंस बताता है, वेयरएज ऑडिट प्लान आपको बताते हैं कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा। तो जितने भी हमारे पास ऑडिट प्लान है वो बहुत डिटेल्ड होता है, ठीक है। ऑडिट प्लान ज्यादा डिटेल्ड होता है एज कम्पेयर टू द ऑडिट स्ट्रैटेजी, दैट इंक्लूड्स द नेचर, टाइमिंग एंड द एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को समझ में आता है कि पीपी है, अब पीपी का हमने ऑडिट करना है। तो पीपी के ऑडिट में मेरे पास ये बंदे हैं, अब मैं इन बंदों से ऑडिट अपना कराऊंगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं उन बंदों से कैसा ऑडिट अपना कराऊंगी, क्या कराऊंगी, क्या मेरा प्रोसीजर रहेगा, ये मेरा प्लान बताएगा। लेकिन पीपी का ऑडिट करना है या बैलेंस शीट आइटम का ऑडिट करना है, ये मेरे ऑलरेडी उसमें डिफाइंड है। किसमें डिफाइंड है? ऑडिट स्ट्रैटेजी में, ठीक है। तो establishment of the overall audit strategy and the detailed audit plan are not necessarily discrete or the sequential process, but they are closely interrelated since the changes in the one may lead to the consequential changes to the other. तो अगर आपका नेचर चेंज हो गया या आपकी टाइमिंग चेंज होगा स्ट्रैटेजी में, तो ऑफ कोर्स आपके प्लान में भी उस हिसाब से फर्क पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट कि दिस इज हाउ दे आर इंटर रिलेटेड। एक और मुझे क्वेश्चन आपको कवर अप कराना है, which is related to the question number 3 part B। इसमें उन्होंने क्या किया था, ड्राफ्ट, इसमें मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ा देती हूँ कि पीके एंड कंपनी एंड चार्टेड अकाउंटेंट आर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ जेसी लिमिटेड। सीए तरुण पार्टनर था, was interested to supervise and verify the inventory items. During the process of verification, a large chunk of draft inventory sheets were accumulated and then a final sheet was prepared. So first of all, he prepared the draft inventory sheet and then he accumulated a final inventory sheet. The audit assistant has kept all the final inventory sheet and all the drafts in the audit file. Is this approach of the audit assistant correct? Which papers, documents may not be included in the audit documentation? तो पहली बार जब आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करते हो तो देन यू आर नॉट सपोज टू इंक्लूड ऑल द ड्राफ्ट्स इन योर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑल द डुप्लीकेट्स, ऑल द ड्राफ्ट जिसकी वजह से आपको हेल्प मिली है वो आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में नहीं आएंगे। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ आपका फाइनल जो आपका पेपर होता है या फाइनल जो आपके पास इन्वेंटरी शीट होगी खाली वही आएगी। दिस क्वेश्चन ऑल्सो कैरीज अ वेटेज ऑफ 4 मार्क्स विच इज अगेन अ बोनस, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आपके 4 पॉइंट्स हैं जो इसमें स्टडी मटीरियल में सॉरी लिखे हुए हैं, और वही 4 पॉइंट्स आपको इसमें लेके आने हैं। समझ में आया? तो अगर मैं इसका आपको आंसर कराऊं तो इन द गिवन केस ऑडिट असिस्टेंट हैज केप्ट अ लार्ज चंक ऑफ ड्राफ्ट इन्वेंटरी शीट एट द फाइनल इन द ऑडिट फाइल व्हिच इज नॉट करेक्ट and auditor is not required to document the draft inventory sheet. Auditor should ensure that only final sheet will form the part of the audit documentation, ठीक है। तो ये आपका एक बन गया डिस्क्रिप्शन। अब जो AC 230 है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, मे बी रिकॉर्डेड इन अ पेपर और एन इलेक्ट्रॉनिक और अदर फॉर्म। तो इसके आपको ये 4 पॉइंट्स आने चाहिए कि जो भी डुप्लीकेट है वो नहीं आएंगे, जो भी आपके पास वर्किंग पेपर है सुपरसीडेड ड्राफ्ट्स वो नहीं आएंगे, जो भी आपके पास नोट्स है जिससे इनकम्प्लीट और प्रिलिमिनरी थिंकिंग होती है वो नहीं आएगी, प्रीवियस कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स करेक्टेड फॉर टाइपोग्राफिकल और अदर एरर्स वो भी नहीं आएंगे।
So these are the 4 points that you need to cover up. तो सुपरसीडेड ड्राफ्ट्स हम नहीं डाल सकते हैं, हम डुप्लीकेट भी नहीं डाल सकते हैं, जो भी हमारे पास टाइपोग्राफिकल एरर के लिए कुछ हमने डाला हमने वो भी नहीं डालना, और जो हमने नॉर्मल एक छोटे से नोट्स बना लिए कि अच्छा इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, हम एक रफ ड्राफ्ट बना लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, तो हमारे पास वो भी नहीं आएंगे. आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया? तो दिस वाज अगेन, मेरे को लगता है कि एक बोनस क्वेश्चन था जो आपको मिल गया. मतलब अगर इस तरीके के क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इन द द मॉडल टेस्ट पेपर, तो मतलब आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि ऑडिट जो पेपर है वो टफ नहीं होता. इट्स जस्ट अ अंडरस्टैंडिंग दैट यू नीड टू हैव फॉर द सब्जेक्ट लाइक द ऑडिट. समझ में आया? मतलब these are the 3 questions which I have like help you to understand. और इसमें ना आप एक बार वो भी कर सकते हो, मतलब जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है वो भी कर सकते हो कि CA Amit is the auditor of LMN Limited. While conducting the audit, he wanted to analyze the different components of internal control. Identify and explain which component of internal control he is trying to understand in the following 2 cases. So whether controls in LMN are operating as intended and they are modified as appropriate for the change in condition. तो जैसे हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल में साफ बताते हैं कि कंट्रोल शुड ऑपरेट इफेक्टिवली, ठीक है, सो दे शुड एग्जिस्ट एंड they should operate effectively. So the first thing is trying to understand whether the controls in LMN are operating as intended. So he is gaining the understanding of monitoring of the control component of the internal control, कि वो कैसे monitor हो रहे हैं, वो कैसे operate हो रहे हैं. तो is a process to assess the effectiveness of internal controls over the period of time. मतलब अगर आप किसी चीज को मॉनिटर कर रहे हो, अगर आप एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप उसमें ये देख रहे हो कि ये कितने अच्छे से वर्क कर रही है ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम. सो इट हेल्प्स इन इफेक्टिवनेस ऑफ असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंट्रोल ऑन अ टाइमली बेसिस एंड टेकिंग द नेसेसरी रेमेडियल एक्शन. It includes whether the controls are operating as intended and they are modified as appropriate for the changes in conditions. So हम जब controls बनाते हैं तो हम उसमें बोलते हैं कि they are existing, they are operating, they are operating effectively, right? तो अगर आप एक चीज को monitor कर रहे हो और अगर आप चीज को देख रहे हो कि इसका ऑपरेशन अच्छा हो रहा है, तो then you are checking the its effectiveness over the period of time कि वो कितना अच्छा वर्क कर रहा है. और जरूरी नहीं है कि आपने आज एक कंट्रोल बनाया तो उसको आपने जस्ट बना के रख दिया. You need to modify it as per the changes in the circumstances. ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन था which was related to the internal control, and that question also consists of the weightage of the 4 marks, I guess. एक मिनट, 3 का ए पार्ट ना, 4 मार्क्स. सो वेदर देयर एग्जिस्ट द प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इन द कंपनी एंड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन ऑथराइजिंग इट. तो आपका जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है वो किस लिए होता है कि मेकर चेकर रूल होना चाहिए कि जो भी पर्सन अगर एक चीज प्रिपेयर कर रहा है तो वही पर्सन दूसरी चीज को चेक नहीं करेगा. सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द सेग्रीगेशन ऑफ द ड्यूटी. ठीक है, तो सेग्रीगेशन ऑफ द ड्यूटी इन द कंपनी एंड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग अ transaction is different from the person authorizing it. He is gaining an understanding of the IC of the company, in particular trying to understand the control activities. When a person recording a transaction is different from one authorizing means, he gains the confidence that there exists a system for preventing the misstatement, because वो partial नहीं होगा, और जब वो partial नहीं होगा तो misstatement के chances बहुत कम हो जाएंगे, वो bias नहीं होगा. because अगर वही बंदा, अगर मेरे हाथ में किसी बंदे की शीट आ गई एंड मैं उस बंदे को जानती हूँ, मैंने ही उसका क्वेश्चन पेपर बनाया, मैं ही उसकी आंसर शीट भी चेक कर रही हूँ, मैं ही उसके सजेस्टेड भी बना रही हूँ, तो obviously I will get partial. So it means there will be no internal control and there are high chances कि मैं उसका जो मार्क्स है वो 100 में से 90 ले दूं. So there are chances of the misstatement. So it helps him to gaining the insight into the internal control system of the company. तो ये एक आपका ऐसा क्वेश्चन है जो आपको इस सजेस्टेड आंसर से ही आपको इंसाइट मिलेगी कि आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या लिख के आना है. अभी तक जो हमने क्वेश्चंस पढ़े थे, सो दैट वर रिलेटेड टू स्ट्रेट स्टडी मटेरियल. ठीक है, उसमें आपको कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना था, लेकिन इस वाले में आपको थोड़ा सा रिलेट करना है कि हमने आईसी में क्या देखना है, हमने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में कौन सी कंट्रोल एक्टिविटीज देखनी है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन इंक्लूडेड बाय द आईसीए इन देयर मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3. सो दिस इज द मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 एक्चुअली, जिसमें से हमने थर्ड के 2 पार्ट एंड 2 के 2 पार्ट्स और कर दिए. आई विल ट्राई कि मैं कल इसके पूरा सजेस्टेड आंसर और एमसीक्यू पार्ट पूरा करा दूं ताकि आपका मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 खत्म हो जाए. समझ में आ रहा है?
because these are the model test paper जो कि उन्होंने 8 या 10 model test paper upload करे हैं. तो आपके पास अगर टाइम नहीं है तो please cover up all these model test paper through the videos only. And if you want me to follow some other approach, then please do let me know in the comment box. I will be more than happy to help you in these last 15 days. May all of you should clear the audit exam with high marks, and all the best everyone for trusting me and for giving me a chance. Okay, so thank you so much everyone.